Hi, good morning everyone. Hope you all are fine at home, enjoying your work. Today I'm just discussing about 21.5 concept. I'm not solving all the questions, but I'm just explaining you what is the concept behind this 21.5 exercise. So whenever you have condition like that, like you have this figure is given to you and you have to find the area of this type of figure. So try to complete the rectangle or square around that figure. So almost most probably it will be a square. So what you will do in that case first, and you can join the diagonal also. So when you join the diagonals, it shows that this part and this part is same. Okay, so now you will concentrate on first outer part, like in this quadrant. Then quadrant area is pi r square by 4, because this you have to find from this. So this is considered as your quadrant radius. Okay, so area of this quadrant will be considered as pi r square by 4, and this rectangle, because if you find the area of only this part, so what you will do, you will subtract the rectangle area of triangle from this quadrant, like minus 1 by 2 into base into height. So this is again base and this is again height in the right triangle form. So that basically you have to use the concept. So in this your exercise first question, your figure is like that. So in this you have already given this square shape figure is given to you, and you have to find the area of the shaded portion, like this M N O P. I'm just talking about the concept only because I know you have already notes of that question is there, so I'm just talking about that one. So here if you look at this, maybe diagram will not be exact perfect. So this is one semicircle, so this is second semicircle, this is third semicircle, and this is fourth semicircle, like this. Your figure is shown like that, and this is shaded portion, and you have to find the area of the shaded portion. If you look at this, so try to split this into two parts, like this and this way. Okay, so when you this split into two parts, so this will become the square and this will become the square, and this, if whole length is 63 centimeter. Okay, so this whole length, because in the question you have given this is a square, so this whole length also will be 63 centimeter. Okay, now we concentrate only one square. Okay, for concentrating only one square, before that you divide this each and every figure into equal parts, like this, and like this. Okay, first what I will do, I will first try to find the area of this shaded portion. Okay, so this all will be of same type that is given in your question. If I found the area of only this shaded portion, so I will multiply directly by 4 to find the area of this 4 uh, leaves of the shaded portion. Okay, so if this is 63, but when I divide this into, I construct this one like middle into half, I divide this into two equal parts and this square also into two equal parts. That means this will be 63 by 2, this will be 63 by 2, and this will be also 63 by 2. Okay, now if you look at it, this is my square. Okay, but basically I have to concentrate only this part. So when I draw this one, like here I show you that if you have to find the area of only this portion, first concentrate on this, because this is a semicircle. Okay, so I take the half of the semicircle here.
So this is the one quadrant of the semicircle. Okay, so one quadrant of semicircle, like that will be 1/4 part of the area of the circle. That is a quadrant of the circle. Okay, or you can go with 2 pi r square by 2 also, because pi r square by 2. So this portion is half of the this one semicircle, and semicircle is considered as your, if you have to find the area of the semicircle, अगर आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है तो आप उसी एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड करोगे, पर अगर मुझे फोर्थ पार्ट निकालना है उसका तो मैं 4 से डिवाइड करूँगी. ओके, उसके बाद ये वाला था ट्राइंगल, उसमें से माइनस कर देना. ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब आपने क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करना है. अब यहाँ पे रेडियस भी, जो मेरा जितना डिस्टेंस जो मेरा बेस है वो मेरे सेमी सर्कल का रेडियस भी है. यहाँ भी ये सेमी सर्कल का रेडियस है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू लगानी है 22/7 इंटू 1/4 इंटू 63/2 इंटू 63/2 माइनस 1/2. बेसिस अगर आप ट्राइंगल को देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल का भी बेस क्या है 63/2, और ये हाइट का भी क्या है 63/2. अब आपने सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है. सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. ईजीएस्ट वे ये है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको, दैट इज़ 11/7, 2 2s are 4, 2 11s are 22. सो 63 इंटू 63/8 दोनों साइड में कॉमन है, तो मैं इसको 11/7 माइनस 1, और मैं इसको कॉमन भी ले सकती हूँ 63/8. ओके, अगर मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे एलसीएम लेके आ गया 11 माइनस 7, 11 माइनस यहाँ पे 7 आ जाएगा, 11 माइनस 7/7 इंटू 63/8. ओके, तो आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो. 11 माइनस 7 is gives you 4. So that gives you 4/7 into 63/8. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 7 1s are 7, 7 9s are 63. So ultimately your answer is left 9/2. So this is only 9/2 is left. So this is one more 63 is there. So I forgot to left. This is not only 163. So this is 9 into 63/2. So my required answer, only half of this portion. This is 9 into 63/2 is left. Because I cancel with 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 7 9s are 63. That is 2 is left. ओके, पर अगर मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, क्योंकि ये डबल हो जाएगा. इतना पोर्शन अभी निकला है तो उसके नीचे वाला पोर्शन भी उतना डबल है. तो जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जो नेक्स्ट मेरा पार्ट आ जाएगा. तो एक्चुअल ये एक शेडेड पोर्शन का आ जाएगा 9 इंटू 63. तो ये आ जाएगा व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन 9 इंटू 63, 9 3s are 27 and 54 into 2 is 567. तो ये तो आपके सिर्फ एक पूरे पोर्शन का एरिया आ गया. ओके, अब जब आपने पूरे चारों का निकालना है तो आपने इसी को शेडेड जो पोर्शन है आपका, शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 567 into 4. So when you multiply you will get 2268 centimeter square. ओके, सो आई रिपीट इट अगेन कि इसमें किया क्या था मैंने, इसमें सिर्फ इतना ही किया था कि ये जो शेडेड पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है. तो सबसे पहले आपके पास जब भी ऐसी कोई शेप आती है तो आपने पहले उसका
इस तरह से पहले एक उसको क्वाड्रेंट बना के देखना है कि हाफ ऑफ द आप कह सकते हो कि फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल या हाफ ऑफ द सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हाफ है, तो पर एक्चुअली ये सर्कल का क्या है, फोर्थ पार्ट, तो जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बाय 4, जो आपके एक क्वाड्रेंट का एरिया है। ओके, उसमें से सिर्फ आप अगर ये ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि अगर ये आपका एक क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट में से अगर आप ये ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो सिर्फ आपके इतने पोर्शन का एरिया आता है। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला था, जो आपका 9 इंटू 63/2 था, ये सिर्फ आपके इतने पोर्शन का एरिया था। ओके, तो जब इसके नीचे एक और पोर्शन दिया होता है तो ये लाइन ये बता रही है कि जितना ऊपर है उतना इस लाइन के नीचे है, तो ये डबल हो जाएगा। तो उसको लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 567 आपके पास जो इसकी लेंथ थी, क्योंकि सेंटीमीटर्स में गिवन था, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर एक आपके शेडेड पोर्शन का आ गया तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगुलर लॉन, इस तरह से आपको एक रेक्टेंगुलर लॉन, उसकी मेजरमेंट गिवन थी 20 मीटर बाय 10 मीटर, ये मेजरमेंट आपको गिवन थी उसमें। then it is further written in your question, each corner of equal base and equal height of 2 meter, find the area of the lawn excluding the flower beds। इसके हर एक कॉर्नर में एक ट्रायंगल कलर का इस तरह का फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड मीन्स कॉर्नर पे जैसे डिज़ाइन की जाती है फ्रेम में, वैसे फ्लावर थोड़े से कॉर्नर पे थोड़े फूल लगाए गए हैं इसमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन लॉन में। ओके, इसकी जो बेस है, जैसे ये बेस है, ये भी 2 मीटर है, हाइट भी 2 मीटर है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड 2 मीटर। आपने क्या करना है, ये जो 4 जो फ्लावर बेड थे इनको इग्नोर करके ये जो अंदर वाला पोर्शन था, ये जो आपका शेडेड पोर्शन था, वॉट एवर दिस शेडेड पोर्शन, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ओके, ट्रायंगल के एरिया में से ये जो आपके 4 फ्लावर बेड्स हैं उनका एरिया माइनस करना है। तो पहले तो अगर आप एक फ्लावर बेड का एरिया निकालोगे तो एक जो फ्लावर बेड का एरिया है, फ्लावर बेड एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, तो हाफ इंटू बेस भी 2 है और हाइट भी 2 है, तो दैट विल बी 2 मीटर स्क्वायर। अगर एक फ्लावर बेड का जो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर है तो 4 का कितना होगा, एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 के साथ, 4 इंटू 2 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास इन 4 फ्लावर बेड का एरिया आ गया। आपने फर्दर शेडेड पोर्शन का निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लॉन, तो हम यहाँ पे टोटल लेंथ और टोटल ब्रेथ काउंट करेंगे, दैट इज 20 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 8, दैट इज 200 माइनस 8 गिव मी 192 मीटर स्क्वायर। ये आपका पोर्शन था सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, जो आपका थर्ड क्वेश्चन में आपको एक फिगर थी, आपको इस तरह से एक स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था आपके क्वेश्चन में, एक स्क्वायर है, मे बी फिगर इज नॉट एक्यूरेट बिकॉज आई एम ड्रॉइंग बाय हैंड, सो हियर अकॉर्डिंग टू this is one semicircle and this another semicircle is joined with that, so these are 2 semicircle join at common point. Okay, and one circle around this, हमें इस सर्कल का अभी कुछ भी नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना दिया है कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ये सॉरी स्क्वायर है, W X Y एंड Z, इसकी जो स्क्वायर की साइड दी है दैट इज 8 सेंटीमीटर।
ओके, तो जो शेडेड पोर्शन है, ये सारा शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकालना है। अगर आप इसको केयरफुली देखो कि ये मेरा एक सेमी सर्कल है, ये मेरा सेमी सर्कल है, इसकी भी साइड 8 है, इसकी भी साइड 8 है, तो ये जो साइड है इस सेमी सर्कल का क्या बना रही है? डायमीटर। ओके, तो डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट इज 4 and 4। तो अगर दो सेमी सर्कल का सेम रेडियस हो तो एक तरह से वो आपका सर्कल ही बन गया, दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल ही बन गया। तो आप सिंपल वे से ये सोचो कि आपने एक स्क्वायर के एरिया में से ये दो सेमी सर्कल निकालने हैं। ये जो आपको अलग से सर्कल दिया है, अब इसका कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा शेडेड पोर्शन सिर्फ इतना ही शो हो रहा है। हाँ, अगर ये वाला पोर्शन भी अनशेडेड होता तो सिर्फ इतना होता, तब हम इस बाहर वाले सर्कल को यूज़ करते। तो ये जो आपको सर्कल दिया है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसमें। इनमें सिर्फ जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपकी फिगर में, वो सिर्फ इतना ही शेडेड पोर्शन दिख रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस स्क्वायर का जो एरिया, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड 8 इंटू 8 माइनस, और जो आपका एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल मिलके आपका पूरा एक सर्कल ही बना रहा है। ओके, तो सर्कल का एरिया आ जाता है पाई 22/7 रेडियस इंटू रेडियस, सो दैट इज़ 4 इंटू 4। सिर्फ आपने इसको कैलकुलेट करना है, 64 माइनस, और जब मैंने इसको कैलकुलेट किया दैट गिव्स मी 50.28, और अल्टीमेटली मेरा आंसर आ गया 13.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? ऑलरेडी एक सर्कल गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरह से फिर से दो, जैसे वो लीव्स के शेप्स होते हैं, वो आपको गिवन है। ओके, आपको सिर्फ इतना शेडेड पोर्शन निकालना है, ऊपर का पोर्शन। ओके, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बोला था कि ट्राई टू कंप्लीट द स्क्वायर अराउंड दैट लीव। अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँ, यहाँ से और यहाँ से, ये देखो, दिस इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये आपका एक सर्कल का डायमीटर बन जाता है। ओके, तो अगर ये देखो कि ये डायमीटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इसी रेडियस के पैरेलल जब एक लाइन बाहर ड्रॉ होगी और यहाँ से ये एक पूरा आपका रेक्टेंगल कंप्लीट होगा, बट ये आपका स्क्वायर है, टू स्क्वायर मिलके एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो अगर इसकी पूरी की पूरी लेंथ 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी कितनी होगी? 14, ये आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन रहा है? क्वाड्रेंट। ओके, इस तरह से ये भी पूरा क्या बन रहा है आपका? क्वाड्रेंट। ओके, पहले तो आपने क्या करना, ये जो मेरा अनशेडेड पोर्शन है, अनशेडेड, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो ये आपके क्वेश्चन में लिखा है कि ये आइडेंटिकल कोऑर्डिनेट्स है। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे, जो इसकी मेजरमेंट है वही इसकी मेजरमेंट है। तो इस तरह से ये टू कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट होते हैं। ओके, तो अब आपको सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जब भी इस लीव की कंडीशन आएगी, आपने सबसे पहले इसको ज्वाइन करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाले पोर्शन का, अगर आप एक पोर्शन का एरिया निकालोगे तो 1 2 3 4 ऐसे मेरे पास 4 पोर्शन है। जब मैंने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करके टोटल 4 पोर्शन आ गए। तो अगर मेरा एक का इतने अनशेडेड पोर्शन का एरिया आ गया, तो मैंने 4 अनशेडेड पोर्शन का भी एरिया निकालना है, और उसी 4 अनशेडेड पोर्शन का एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से आप अनशेडेड को माइनस कर दोगे तो आपका शेडेड एरिया का पोर्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले ये क्वाड्रेंट की तरफ देखना है। ये मेरा एक तरह का सर्कल का क्वाड्रेंट है, ये भी मेरा सर्कल का क्वाड्रेंट है। ओके, आप इसको दो तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट मिलके आपका सेमी सर्कल ही बनाते हैं, तो आप सेमी सर्कल का एरिया भी लगा सकते हो। बट बेसिक यही होगा कि हम सबसे पहले सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया पे कंसंट्रेट करें। तो ये मेरा, अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा एक क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? पाई r² बाई 4, ये मेरे क्वाड्रेंट का एरिया। तो
उसके बाद अगर मैं यहाँ से जो मैंने लाइन ज्वाइन की है तो ये मेरी एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है। सो उसमें से अगर मुझे इतने अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से मुझे ये वाली जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो माइनस करनी पड़ेगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और मेरा रेडियस भी वही है यहाँ पर जो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। सो दैट इज़ 22/7 इंटू 1/4 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/2 इंटू 14 इंटू 14, दैट इज़ अ एरिया ऑफ वन अनशेडेड पोर्शन। बिकॉज पहले अनशेडेड निकालेंगे तभी आप शेडेड का निकालोगे। पहले जो आपके एक सर्कल के अंदर ये टोटल 4 अनशेडेड पोर्शन बन रहे हैं तो पहले एक का निकालोगे तो वो 4 का भी आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे देखो 11, 2 2s are 4, इसमें फिर से 14 इंटू 14/2 कॉमन है, 11/7 है। तो मैंने अगर मैं इसको यहाँ से कॉमन ले रही हूँ 14 इंटू 14/2, तो जब आपने एलसीएम लिया 11 माइनस 7/7 इंटू 14 इंटू 14/2, सो दैट इज़ 4 इंटू 7, 14 इंटू 14/2, 7 2s are 14, 2 2s are कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 14 इंटू 4, ये आपका एक्चुअल है 14 इंटू 4, और जो 14 इंटू 4 आप मल्टीप्लाई करोगे सो दैट गिव्स यू 56 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स इतना जो एक अनशेडेड पोर्शन है उसकी एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 4 अनशेडेड पोर्शन का कितना होगा, एरिया ऑफ 4 अनशेडेड पोर्शन, unshaded portion, area of 4 unshaded portion, that is 4 into 56 centimeter square. When you multiply this one that gives you 4 6 are 24 and 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपके 4 अनशेडेड पोर्शन थे उनका एरिया आ गया 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है, पूरे सर्कल में से इन्हीं 4 अनशेडेड पोर्शन को छोड़ के बाकी सर्कल का एरिया निकालना है। तो आप सर्कल के एरिया में से यही 4 अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकाल दोगे। नाउ शेडेड पोर्शन में सर्कल का एरिया तो आपका आ गया पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज़ 22/7 इंटू रेडियस था सर्कल का 14, क्योंकि जो यहाँ पे बाहर है वो इसी के डायमीटर के पैरेलल है तो 14 रेडियस आ गया, पाई आर स्क्वायर। इसमें से आपने माइनस किया 224, तो ये पोर्शन आपका मल्टीप्लाई करके आ गया 616 माइनस 224, दैट इज़ 392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सर्कल का जो शेडेड पोर्शन का एरिया वो आ गया। नेक्स्ट इज़ योर 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा जो आपको फिगर दी है, ऑलरेडी एक सर्कल यहाँ पे आपको गिवन है, इस तरह से सर्कल आपको गिवन है। ओके, सर्कल में आपको इस तरह से कुछ 4 लीव्स में डिवाइड किया गया सर्कल्स को। एक लीफ इस तरफ जा रहा है आपका, एक लीफ इस तरफ जा रहा है। इट्स नॉट ए सेमी सर्कल, एक लीफ की फॉर्म में है। आपको बस इतना गिवन है कि ये सर्कल का रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर है। तो एक लीफ आपका ये पोर्शन बन रहा है, एक आपका ये, फिगर में भी नॉट करेक्ट, बट इस तरह से वो लीव्स बन रहे हैं कि उनका जो पोर्शन सेम है। ये 4 आइडेंटिकल लीव्स हैं ओके सर्कल के, और ऑलरेडी ये जो है लाइन इज गिवन टू यू। Maybe figure not looks like same because I am drawing by hand, but actual in the figure is that, actual purpose of the figure is that कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पोर्शन इक्वल है क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है। इसके अंदर ये जो है ABC and D, this is a square. Okay, maybe it not look like a square because I draw with the hand, so maybe uneven condition will be arise here, but you must understand
because that is given. If it is written in your question, so we will consider as this is a square. ABCD is a square और 8 shaded parts equal areas 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 शेडेड पार्ट के इक्वल एरियाज हैं. ओके, तो अगर मैं सिर्फ एक शेडेड पार्ट का, सपोज मैं इसका एरिया निकाल दूं, एक शेडेड पार्ट का भी मेरे पास एरिया आ गया, तो उसको मैं 8 से सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सबसे पहले तो आपने कंस्ट्रक्शन करके एक सर्कल की जो डायमीटर है दोनों साइड पे ड्रॉ कर लेना, जो एग्जैक्टली इनके सेंटर्स पे आ रहा है. ओके, अब अगर मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का निकालना है एरिया, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये फिर से मेरा सर्कल का क्वाड्रेंट है. ओके, सर्कल के क्वाड्रेंट में अगर मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, सर्कल के क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मैं एरिया इसमें से माइनस कर दूँगी. तो जो सर्कल का क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या है, पाई r²/4 माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो ट्राइंगल है, ये आपका वन शेडेड पोर्शन. तो वन शेडेड पोर्शन का जो आपने एरिया निकालना है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया आपने माइनस कर देना है. अब आ जाओ, मुझे क्या क्या गिवन है. 12 सेंटीमीटर मुझे रेडियस गिवन है, ये रेडियस 12 है, इतना पोर्शन भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर. ओके, तो ये रेडियस इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी है और ट्राइंगल का बेस एंड हाइट भी है. तो ये 22/7 इंटू 12 इंटू 12/4 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 आ गया. नाउ 2 2s are 4, 2 11s are 22. फिर से यहाँ पे 12 इंटू 12/2 कॉमन है, तो इसको मुझे सॉल्व करना ईजी होता है कि अगर मैं कॉमन निकालूँ. 11/7 माइनस 1 इंटू 12 इंटू 12/2, 2 6 are 12. तो मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ. अब यहाँ पे आ गया 11 माइनस 7/7 इंटू 6 इंटू 12. तो 11 माइनस 7 इज़ 4/7 इंटू 6 इंटू 12. ओके, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका एक शेडेड पोर्शन का एरिया निकला. सो दैट इज़ 792/7. और जब आपने इसको डिवाइड करके चेक किया, दैट इज़ 113.14. मीन्स आपके एक शेडेड पोर्शन का जो आपके पास आ रहा है, सॉरी, इसमें 4/7, लेट मी चेक फर्स्ट. सो ये जो है आपका पूरे क्वाड्रेंट में से हमने सिर्फ क्या माइनस किया इसमें, ये वाला, सॉरी, ये तो इसका फर्स्ट वाला पोर्शन था 4/7 इंटू 6 इंटू 12. नो, दिस इज़ नॉट 722/7, बिकॉज मुझे यहाँ से ये -1 भी था आपका, इसमें ये भी कैलकुलेट करना था. तो ये आ गया 4 इंटू 6 इंटू 12/7. ये टोटल आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 41.14. क्योंकि ये अगर मैं इसको इस तरह से कॉमन नहीं ले रही हूँ, तो 11 माइनस 11/7 इंटू 12 इंटू 12/2, इतने पोर्शन का आता है आपका 113.14. और ये आपका 6 इंटू 12 आ गया 72. बट अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले रही हूँ, 11 माइनस 7 4/7 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 12, 6 इंटू 12 इज 72, 72 इंटू 4. तो ये आपकी कैलकुलेशन बन जाती है 72 इंटू 4/7, 288/7. तो कैलकुलेट डिवाइड करके 288/7 41.14. एक जो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाता है 41.14. तो इसी तरह से अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो यही जो आपके वैल्यू 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकले, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एरिया ऑफ 8 शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ 1 शेडेड पोर्शन आपको गिवन था. शेडेड पोर्शन जो आपके पास आया 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन एरिया ऑफ 8 शेडेड पोर्शन, उसी तरह के जो 8 शेडेड पोर्शन है
then you have to multiply 8 into 41.14, so that gives you 329.14 centimeter square approximately. This will give you this value to you. Next is rest of the question is same according to that. In your sixth question, your figure is like that, like here. Only this is given to you 12 centimeter from here, and so this is one quadrant is here. I'll draw properly. So this is one quadrant here, and this is another quadrant here. So that is a quadrant. Okay, between that, like this. So this portion shows like that. So this length is given 20 centimeter, and distance between these two is given 10 centimeter. Okay, if you try to convert into the quadrant, so this is one quadrant, and this, when you join this one, this is also a quadrant, proper in the form of quadrant like this. So this is if this is 10, so this portion also will be 10. Okay, similarly up to this is this to this is 20, so that means only 10 centimeter is here. अगर ये पूरी लेंथ 20 है तो 10 सेंटीमीटर अगर रेडियस की फॉर्म में निकल गया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. अगर आप इसको पूरा रेक्टेंगल भी कंप्लीट करके देखोगे तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी. यहाँ हमने रेक्टेंगल नहीं निकालना, हमने सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. तो एक क्वाड्रेंट यहाँ पे है, तो आपको गिवन है ये 10 है, तो ये भी आपका के पास क्या आ जाएगा 10. इतना पोर्शन भी 10. मे बी फिगर इज़ नॉट एक्यूरेट बिकॉज आई ड्रॉ बाय हैंड, बट इफ़ यू लुक एट द फिगर, सो दिस पोर्शन, बिकॉज ये भी आपका एक क्वाड्रेंट है. ओके, तो ये भी 10 है. तो अगर इतना पोर्शन 10 है तो ये बीच में एक आपका क्या आ गया स्क्वायर. ओके, ये दिस वन इज अ स्क्वायर, दिस वन इज अ वन क्वाड्रेंट, दिस इज अ सेकंड क्वाड्रेंट. तो और दो क्वाड्रेंट मिलके क्या बनते हैं, एक सेमी सर्कल बनाते हैं. तो मैं सीधा एक सेमी सर्कल का फॉर्मूला, सेमी सर्कल में मैं एक स्क्वायर का जो एरिया है वो मैं ऐड कर सकती हूँ सीधा, क्योंकि ये सारा शेडेड पोर्शन है. तो एक ये क्वाड्रेंट और एक ये क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट मिलके क्या बनते हैं सेमी सर्कल. सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2. ओके, प्लस क्योंकि यहाँ पे पूरा शेडेड पोर्शन के अंदर है और बीच वाला पोर्शन क्या आ गया स्क्वायर, सो दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, उसका एरिया आ गया. व्हेन यू अप्लाई द वैल्यू 22/7, रेडियस 10 है, 10 इंटू 10/2 प्लस साइड भी मेरी स्क्वायर की क्या है 10, 10 इंटू 10, सो दैट विल बी 11. व्हेन यू सॉल्व दिस वन, सो दिस पोर्शन जो 11 इंटू 100/7, दैट गिव यू 157.14 plus 100, and your required answer is 257.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया. नेक्स्ट योर सेवन्थ क्वेश्चन. सेवन्थ क्वेश्चन में तो आपको दो क्वाड्रेंट ऑलरेडी गिवन है अनशेडेड पोर्शन में. ओके, तो आपको यहाँ पे एक आपको अगर रेक्टेंगल गिवन है 10/5, 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से दो क्वाड्रेंट ज्वाइन हो रहे हैं. आपको गिवन है क्वेश्चन में ये दो क्वाड्रेंट है, ये अनशेडेड पोर्शन है, आपको शेडेड पोर्शन निकालना है. तो सिर्फ आपने क्या करना है, पहले तो ये जो आपका अनशेडेड पोर्शन है पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से ये वाला अनशेडेड पोर्शन आपने माइनस कर देना है. तो अगर ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट मिलके एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, तो आप एक रेक्टेंगल का एरिया 5 इंटू 10 आ गया, उसमें से ये जो दो क्वाड्रेंट का है उसको माइनस कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका शेडेड पोर्शन आ जाएगा. तो दो क्वाड्रेंट मिलके क्या बनाते हैं आपके पास सेमी सर्कल. तो यहाँ पे सेमी सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2, 22/7 रेडियस. अब इसका रेडियस 5 है तो इसका भी 5 होगा, क्योंकि ये 5 + 5 10 बना रहे हैं, और ये भी आपका 5 आ जाएगा, 5 इंटू 5/2. तो ये आपका रिक्वायर्ड आ जाए और कंडीशन आ जाएगी. सो दैट इज 11. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, दिस इज 50 माइनस और
25 into 11 by 7. So after calculation 39.28, and that gives you after subtraction 10.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो आपका शेडेड एरिया का पोर्शन आ जाएगा 10.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक पूरा का पूरा सेमी सर्कल दिया हुआ है इस फॉर्म में. ओके, और एक जो राइट एंगल ट्राइंगल वो गिवन है. ओके, 20 सेंटीमीटर जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसी में एक कंडीशन को हम बेस कंसिडर करते हैं, एक कंडीशन को हम परपेंडिकुलर. तो एक तरह से आपको ये नहीं गिवन है. ओके, तो सबसे पहले क्या आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लेना है. दिस इज अ हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. ओके, दैट इज 400 plus 225. Then hypotenuse square is 625. Then you take square root on both sides. Square root of 625 is 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ये जो पूरी आपका हाइपोटेन्यूज निकला जो सेमी सर्कल का डायमीटर भी है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. तो अगर मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो इस पूरे डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस, दैट इज़ 25/2. तो मैंने अब सेमी सर्कल के एरिया में से ये जो ट्राइंगल का एरिया वो माइनस कर देना है. अब सेमी सर्कल का एरिया क्या था, πr²/2. सो दैट इज़ 22/7. रेडियस था 25/2 इंटू 25/2. ये आपका r² था एंड हाफ, दैट इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल. इसमें से आपने माइनस कर दिया इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया. राइट एंगल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस, बेस आ गया 15 and 20. So that gives you 150 this side. But when you solve this one, this is 11 into 25 into 25, 7 into 4, 7 into 4. So ये आपका आ गया 625 into 11/28 माइनस 150. ये वाला पोर्शन आ गया. और जब आप इसको सॉल्व करोगे 625 इंटू 11/28, ये वाली आपकी फॉर्म बन जाएगी 245.53 माइनस 150. और सॉल्व करके आपके पास जो आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ शेडेड ही चाहिए, तो अगर आप सेमी सर्कल में से ये राइट एंगल ट्रायंगल माइनस कर देते तो आपका शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा 95.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करूँ तो ये 0.53 है. ओके, तो ये आपका 53 भी मैं इसको लिख सकती हूँ, ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैंने 245 माइनस 150 मेन देखना है. तो यहाँ पे आपका 5 आ गया, 14 माइनस 5 इज़ 9. तो यहाँ पे एक्चुअली ये अप्रॉक्सीमेटली था 53, तो इसको मैं 53 पॉइंट समथिंग था तो 54 भी लिख सकती हूँ. और अगर आपको इसी पे स्टिक रहना है तो यहाँ पे आ जाएगा 95.53 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द area of the shaded portion. Thank you. Have a nice day.